Good morning, student. This is Kekasha, your teacher of accountancy, and you are watching the chapter 3 Reconstitution of Partnership Changing Profit Sharing Ratio video part D. I hope you are healthy and safe at your home and following the instructions of COVID-19 lockdown. So, let's start today's continue the last chapter. After watching this video, you will be able to understand the treatment when revised value of assets and liability to be shown in books, or treatment when revised value of assets and liability not to be shown in books. Just recall up in last video what we have done. We have done the treatment of revised value of asset and liability in books of accounts, that is in journal entry, in the form of journal entry, and also we have done the making of revaluation account, and we have learned also that two ways of posting of revised value of assets and liability in the books of account. That two ways are these two ways, that is whether the partners are want to show the revised value of assets and liability in further books of account, and whether they want to don't show the revised value of assets and liability in further accounts and further year. So these two are when revised value are to be shown in books and when revised value are not to be shown in books. The first condition is when revised value are to be shown in the books. In this case, revaluation of assets and liability is complete with the help of revaluation account. This account is also known as profit and loss adjustment account. All losses due to revaluation are shown in debit side of this account, and all gains due to revaluation are shown in credit side of this account. जनरली अगर आपके पार्टनर्स चाहते हैं कि वो कंपनी में रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट और लायबिलिटी कंटिन्यू करें अपने नेक्स्ट ईयर ऑफ बैलेंस शीट में, तो वो क्या करते हैं कि उस साल एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें से जो भी प्रॉफिट गेन होता है, नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, फॉर द आफ्टर रिवाइज्ड the value of assets and liability, that profit will be distributed among the partners in their old ratio. If in second case जनरली क्या होता है कि उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं, बल्कि जो एक्स्ट्रा गेन होता है रिवाइज्ड वैल्यू से, उस गेन का उतना प्रोपोर्शन जो है वो पार्टनर्स एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे के कैपिटल्स में. जो गेनिंग पार्टनर होता है वो स्पेसिफिक रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पे करता है, कंपनसेट करता है ऑफ द दैट प्रोपोर्शनेट ऑफ दैट अमाउंट विच आर गेटिंग बाय द रिवैल्यूएशन. सो फॉर दिस वी विल डू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल क्वेश्चन बाय दिस प्रोसेस. On your window you are watching the question, numerical question, in which the Piyush, Pooja and Praveen partners are sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2, and the respective balance sheet of their partners are these follows. After this you have seen that the new partner sharing ratio is 4:3:2, and the specific adjustments are given in this question. First is stock is valued at 2,20,000, which means the value of stock has been declined by 20,000. Next is machinery is depreciated by 10%, which means again the value of machinery declined by 10%. That is 3,18,000 of 10%, which means 31,800. Next, a provision for doubtful debt. It is also a loss by 5% on debtors. So the 5% of debtor is 88,000. 5% of 88,000, that is 4,400. Next, building is to be appreciated by 20%, which means the value of building is inclined or increased by 20%. So the value of building is 4 lakh. So 20% of 4 lakh is 80,000. Next, 5,000 is liability is not supposed to be arises, which means it is a profit for the partners. So it is supposed to be a credit, or it's supposed to be a gain for the partners. Let's solve the numerical. Okay, let's solve this question. First of all, we pass the journal entry according to the question, whatever the revised value of assets and liability are. So first of all, we will pass the journal entry of that, according to which we are getting a loss through revaluation of asset or liability. So after watching your question, you will be understood that stock, machinery and provision for doubtful debt have declining their
वैल्यू, विच मीन्स कि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है 20,000 से, आपकी पुरानी वैल्यू 2,40,000 थी और रिवाइज वैल्यू 2,20,000 थी, मतलब कि 20,000 से डिक्लाइन हो रहा है। मशीनरी, आपकी मशीनरी के ऊपर आपका 5% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है एंड आपकी प्रोविजन मशीनरी पर आपका 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करने को बोला जा रहा है डेटर्स के ऊपर 4,400 रुपीज़। तो इन तीनों की वजह से, इन तीनों असेट्स की वजह से आपको लॉस हो रहा है, मतलब कि तो लॉस हो रहा है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जैसे कि हमने जनरल एंट्री में पढ़ा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टॉक के सामने स्टॉक की वैल्यू 20,000 क्रेडिट में, टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 31,800 एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इन फ्रंट ऑफ दिस इन क्रेडिट कॉलम 4,400। तीनों का टोटल जो आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट कॉलम में जाएगी ये सारी अमाउंट, 56,200 से आपको लॉस हो रहा है। फिर आपकी नरेशन पास होगी, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन of transfer to revaluation account, either you can also that being loss on revaluation of assets and liability। फर्दर मूविंग ऑन, अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि रिवैल्यूएशन करने पर किस किस चीज़ों पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो दो चीज़ें हैं आपके एडजस्टमेंट में देख रहे होंगे। बिल्डिंग में आपको 20% से अकॉर्डिंग आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है 80,000, दैट इज 80,000, आपकी वैल्यू 4 लाख है, 4 लाख का 20% हो जाएगा 80,000। एंड क्रेडिटर्स हैं 5,000 के जो अराइज नहीं हो रहे हैं, इनका क्लेम नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारा फ़ायदा है, तो अगेन ये आपकी क्या हो जाएगा 5,000 का फ़ायदा। सो यू कैन से जनरेटिंग अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में, और असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में, और लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में। जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग ये सही है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बात की थी कि एक नॉमिनल अकाउंट है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री बनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग के सामने बिल्डिंग की अमाउंट डेबिट कॉलम में 80,000, क्रेडिट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट्स के सामने क्रेडिट की अमाउंट 5,000 डेबिट में, एंड रिवैल्यूएशन के सामने टोटल अमाउंट कितना फ़ायदा हो रहा है 80,000 प्लस 5,000 दैट इज 85,000। अब दोनों जनरल एंट्री को आप कंपैरिजन करेंगे रिवैल्यूएशन में, तो दोनों में रिवैल्यूएशन करने पर क्या टोटल आपका डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। तो अब देखिए डेबिट का रिवैल्यूएशन ज़्यादा है कि क्रेडिट का रिवैल्यूएशन ज़्यादा है। आप ये देखेंगे कि क्रेडिट का रिवैल्यूएशन ज़्यादा है, मतलब कि फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो फ़ायदा होने की एंट्री क्या होगी, आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू whatever the advantage and whatever the profit you are getting on revaluation, that profit are distributed among the existing partners into their old profit sharing ratio। तो 20 इनका डिफरेंस कितना आ रहा है रिवैल्यूएशन का, 85,000 आ रहा है क्रेडिट में और 56,000 आ रहा है डेबिट में। तो इसका बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस 85,000 माइनस 56,200 दैट इज ये 28,800 आपका प्रॉफिट आ रहा है, जो कि तीनों अकाउंट्स पार्टनर्स में आप उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:3:2, पीयूष, पूजा एंड प्रवीण। तो आपने मल्टीप्लाई किया 28, आप यहाँ देख सकते हैं वर्किंग नोट में 28,800 पीयूष का शेयर ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 28,800 मल्टीप्लाई बाय 3/8, 8 डिवाइड बाय दिस 3,600 मल्टीप्लाई बाय 3 10,800। देन आफ्टर दैट प्रवीण सेम पूजा का हो जाएगा क्योंकि पूजा का भी सेम रेशियो है 3, एंड आफ्टर दैट प्रवीण का आप निकालेंगे तो प्रवीण का निकालने पर आपका वैल्यू आ रही है 7,200। आपने पोस्ट कर दिया पीयूष के कैपिटल के सामने 10,800 दैट इज 10,800, एंड पिया के कैपिटल के सामने 10,800 पूजा एंड प्रवीण कैपिटल के सामने 7,200। टोटल अमाउंट रिवैल्यूएशन 28,800 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी जनरल एंट्री की थी। अब आगे बढ़ते हैं रिवैल्यूएशन के अकाउंट की तरफ। अब बनाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले सेम इसी तरह से आपको बनाना है, सेंटर में लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जस्ट बिलो इट आपको डेट मेंशन करनी है ऑन विच डेट यू आर गिविंग इन योर क्वेश्चन, दैट इज़ आपके क्वेश्चन में गिवन है 31 मार्च 2015, तो मैंने ये मेंशन किया है। देन कॉलम होंगे आपका डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम स्टैंड्स फॉर लॉस एंड क्रेडिट कॉलम स्टैंड्स फॉर गेन, दैट इज़ योर प्रॉफिट। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं लॉस में। लॉस में जो आप देखिए जनरल एंट्री में सीधा रियलाइजेशन अकाउंट आप लेजर बना रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, तो उनके अपोजिट में जो एंट्री है वो टू साइड मेंशन हो जाएगी, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑफ और
doubtful debt, 20,000, 31,800, 31,800 and 4,400. सेम एज इट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ क्रेडिट में है जनरल एंट्री में, कहाँ क्रेडिट में, इस एंट्री में, तो इसके अपोजिट वाली एंट्री पोस्ट हो जाएंगी इसकी लेजर में, दैट इज बाय बिल्डिंग अकाउंट, बाय क्रेडिटर अकाउंट. सेम एज इट इज़ यू कैन से बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट. क्रेडिटर से हमें 5,000, बिल्डिंग से हमें 8,000. आप दोनों को बैलेंस करिए. ये अभी आप इसको देख लेना. बैलेंस करने पर आप क्या लेंगे कि इस कॉलम की टोटल अमाउंट आ रही है 85,000 और इस कॉलम की आपकी टोटल अमाउंट आएगी 56,200. तो किस साइड कॉलम ज़्यादा है? क्रेडिट साइड कॉलम ज़्यादा है. तो नीचे टोटल में अमाउंट किसका लिखेंगे? जो ज़्यादा होता है, 85,000. हम वो अमाउंट कहीं नहीं लिखते जो कम साइड होता है, कम वाला अमाउंट हम कभी नहीं लिखते हैं. अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ जितने अमाउंट से कम होगा ये साइड, डेबिट साइड कितने अमाउंट से कम है? 28,800. दैट इज़ द डिफरेंस. कैसे हमने निकाला? 85,000 जो क्रेडिट साइड का अमाउंट आया माइनस इन तीनों का टोटल, दैट इज़ 56,200. बैलेंस आ गया 28,800. इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पीयूष, पूजा एंड प्रवीण इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंट्री बनी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीयूष, पूजा, प्रवीण. ऐसे आपको लिखना है. पीयूष के अंदर सामने 10,800, पूजा के सामने 10,800, प्रवीण के सामने 7,200. तीनों का जो टोटल आएगा वो बाहर कॉलम में आएगा 28,800. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट करना बनाना है. सेम ही फॉर्मेट होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का. देन फर्दर मूविंग अहेड, लेट्स टॉकिंग अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाना सीखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में, बेसिक्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस ईडी, बीडी लिखेंगे. आपका कॉलम्स पता है, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम कॉलम, पर्टिकुलर पार्टनर्स कॉलम. फर्स्ट ऑफ ऑल बाय बैलेंस बीडी, जो आपकी पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल की अमाउंट होगी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है. 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख जो आपके क्वेश्चन में मेंशन है. देन उसके बाद कोई चेंजेस हुए हैं, सिर्फ रिवैल्यूएशन का ही रिगार्डिंग चेंज हुआ है पार्टनर्स कैपिटल के साथ, जो हमने यहाँ एंट्री की थी. यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पीयूष कैपिटल, पूजा कैपिटल एंड प्रवीण कैपिटल. ठीक है, तो सेम ही ट्रांसफ़र करना है. तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जस्ट सपोज करिए कि अब हम पार्टनर्स कैपिटल का लेजर बना रहे हैं, तो हम पार्टनर्स के लेजर को मेंशन करेंगे. तो यहाँ पे देखिए पार्टनर्स क्या है? क्रेडिट में. तो एंट्री भी कहाँ होगी? क्रेडिट में. पर उसका नाम कभी नहीं लिखते, जिसका लेजर बनाते हैं उसके अपोजिट वाली एंट्री लिखते हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेम एज इट इज़ बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ आ गया क्रेडिट में. किसके किसके एंट्री हम लिखेंगे? जिसके नाम, जिस कॉलम के आगे जिसकी अमाउंट होगा, दैट इज़ यहाँ पे पीयूष कैपिटल के सामने 10,800, तो पीयूष के कैपिटल में 10,800 आएगा, पूजा के सामने 10,800 आएगा, प्रवीण की कॉलम में 7,200 आएगा. तो ये प्रॉफिट आप हमेशा याद रखिए, क्या पार्टनर्स कैपिटल में अगर जितना भी पार्टनर्स को मिलता है क्रेडिट में, अगर जितना पार्टनर्स के कैपिटल से जाएगा, मतलब कि विड्रॉन होगा या फिर उनको नुकसान होगा पार्टनर्स कैपिटल से, तो वो यहाँ पे जाएगा डेबिट में. तो इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है रिगार्डिंग पार्टनर्स कैपिटल. तो जस्ट ओवर हेड बैलेंस हम कर देंगे. बैलेंस करने पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड कोई एंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली वो बैलेंस हम निकाल लेंगे. वही हमारी क्या अमाउंट बैलेंस आएगा? 4 लाख प्लस 10,800, दैट इज़ 4,10,800. वही हमारी बैलेंस आ जाएगी. टू बैलेंस ईडी हम डायरेक्टली लिख देंगे 4,10,800, 3,10,800, 3,07,200. देखिए दोनों को टोटल करिए. 3 लाख प्लस 10,800, 3 लाख प्लस 7,200. ओके, हमने यहाँ टोटल अमाउंट कर दिया क्योंकि क्रेडिट साइड ही अमाउंट थी हमारे पास, तो क्रेडिट साइड की ऑब्वियसली ज़्यादा ही है क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट नहीं थे. तो हमारे टोटल में भी कौन सी अमाउंट आएगी? क्रेडिट साइड की अमाउंट. ओके, लेट्स मूविंग अहेड. अब क्योंकि हमारी वैल्यू, हमने क्वेश्चन में बात की थी कि हम यहाँ पे अपनी रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी को बुक्स में शो करना चाहते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है, बुक्स की वैल्यू है पर्टिकुलर एसेट लायबिलिटी की, चेंज हो गई होगी. तो उस चेंज वैल्यू को हम अब न्यू बैलेंस शीट में बनाएंगे. तो हम बनाएंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है. आपको पता है बैलेंस शीट बनाना, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड असेट्स. अब इसमें जो भी एंट्री हम वैल्यू लिखेंगे वो रिवाइज्ड वैल्यू लिखेंगे, और अगर किसी की वैल्यू रिवाइज, मतलब कि कोई किसी की वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा तो एज इट इज़ लिखा जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं असेट साइड की. ठीक है, कैश एट हैंड में कोई चेंजेस नहीं बोला गया था क्वेश्चन में, तो एज इट इज़ जो पुराना था वही हम यहाँ पे लेके आएंगे 74,000. सन्ड्री डेटर्स में चेंजेस बोला गया था. सन्ड्री डेटर्स ओल्ड वैल्यू थी 80,000, उसमें से प्रॉफिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें क्रिएट करने को बोला गया था 5% से.
तो हमने यहाँ कर लेंगे 5% क्रिएट किया, लेस 400 वैल्यू आएगी 83,600। देन स्टॉक की वैल्यू में चेंजेस किया गया था, कितना 20,000 डिक्रीज हो गया, तो ये हमारी रिवाइज वैल्यू हो गई 2,20,000। मशीनरी में डिप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला 3,80,000 पर 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, लेस करने पर अमाउंट आएगा 2,86,200। देन बिल्डिंग की वैल्यू भी रिवाइज करने को बोली गई 4 लाख है, उसमें अप्रिसिएशन चार्ज हो मतलब इंक्रीज हो गया 20% से, तो 4 लाख का 20% 80,000 ऐड करने पर 4,80,000। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स की भी रिवाइज वैल्यू है, क्योंकि 5,000 हमें क्लेम नहीं करने, तो 5,000 हमें कम रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 48,000 थी पहले वैल्यू, अब हो जाएगी 43,000। बैंक लोन में कोई चेंजेस करने को नहीं बोला गया, तो बैंक लोन एज इट इज़ यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा 72,000 से। अब बात करते हैं रिवाइज कैपिटल, क्योंकि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट न्यू बनाया, हमारे फिर से बनाया, तो उसमें जो पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस है वो चेंज हो गया, तो जो चेंज बैलेंस आया बैलेंस CD, that is these value will be posted in this capital in front of their respective partners capital। पीयूष की रिवाइज्ड कैपिटल है 4,10,800, पूजा की रिवाइज कैपिटल है 3,10,800 एंड प्रवीण की रिवाइज कैपिटल है 3,70,200। टोटल अमाउंट इज 10,28,800। सो आफ्टर adding both column you will find that both column total is 11,43,800, 11,43,800। आपकी दोनों वैल्यू मैच हो गई, मतलब कि आपका आंसर सही है। ओके